वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਨ ਜੀ। Good morning everyone. On behalf of the Directorate of Students Welfare, Guru Gobind Singh Indraprasth University, I welcome you all to today's program. Honorable Vice Chancellor Padma Shri Dr. Mahesh Verma, our respected Registrar Sri Shailendra Singh Parihar, deans, directors, officers of the university, faculty colleagues, staff members, and dear students. We have got together today to celebrate the birth anniversary of Sri Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of the Sikhs, who was born in Patna on December 22nd, 1666, whose Prakash Purab is celebrated every year according to the Nanak Shahi calendar. Guru Gobind Singh Ji, born as Gobind Rai, was a spiritual leader, warrior, poet, and philosopher. He became the leader of the Sikhs at the age of 9 after his father, Guru Tegh Bahadur Ji, the ninth Guru, was executed by Aurangzeb. He initiated the Khalsa tradition, giving the Sikhs a unique identity, and introduced the wearing of the 5 Ks, the 5 articles of faith, to be worn at all times. He also designated the Guru Granth Sahib Ji as the eternal Guru of the Sikhs. His sacrifices, he believed in Dharam Yudh, war in defense of righteousness, fought as a last resort, neither out of a wish for revenge, nor for greed, nor for any destructive goals. He believed that one has to be prepared to die to stop tyranny, end persecution, and to defend one's own religious values. Guruji, sacrificed his entire family, an unparalleled world history, to uphold the ideals in the face of tyrannical forces. Guruji fought 14 battles against the Mughal Empire, the kings of the Shivalik Hills. He gave up his own life in 1708 at a young age, having lived a life that inspires us all to never compromise with our ideals and principles. Such was the great Guru after whom our university is named, our Honorable Vice Chancellor, who initiated the tradition of celebrating this auspicious occasion 2 years ago. We are ever grateful for this to you, sir. I now invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Mahesh Verma ji, to address us on this occasion. Sir. शुक्रिया मनप्रीत जी। हमारे विश्वविद्यालय परिवार के इस अवसर पर उपस्थित सभी संकायगण, कर्मचारी, अधिकारी, रजिस्ट्रार साहब और अन्य जनमान्यगण, कीर्तन मंडली के भाई और सभी साथी, आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर यहाँ सम्मिलित हुए हैं। मुझे बड़ा अचंभित हूं मैं थोड़ा कि ये कोरोना काल की वजह से हम ये सब वर्चुअल रूप में कर रहे हैं, और जैसे मनप्रीत ने बताया कि पिछले 2-1 साल से हम इसे बढ़ चढ़ के बहुत खुशी और उल्लास से मनाते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको गुरु जी के प्रकाश दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं जिसे महान व्यक्तित्व का नाम दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी जैसी परोपकारी शख्सियत ना कभी हुई है ना कभी होगी। अगर आप विश्व इतिहास में देखें, शायद ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जिसने सब कुछ जो है अपना बलिदान कर दिया। ऐसा महापुरुष गुरु जिसने सर्वस्व मानवता के लिए बलिदान किया। समाज में उनका योगदान अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई, इसे कायम रखना विश्व इतिहास में अद्वितीय है और हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अभी प्रोफेसर मनप्रीत जी ने उनकी जीवनी के कुछ अंश हमें बताए। मैं थोड़ा विस्तृत
रूप से बताना चाहूंगा कि मात्र 9 साल की अल्पायु में गुरु के रूप में वो स्थापित हुए जब उनकी पिताजी की देहांत हुआ। और वो ना ही केवल निडर योद्धा थे, बल्कि महान कर्म प्रणेता, आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक कवि भी थे। वो इतना जो उन्होंने लेखनी लिखी है और पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी को उन्होंने पूरा किया है, ये एक साक्षात है कि वो किस तरह के शख्सियत थे। वो गुरु भी थे, लेखक भी थे, समाज सेवी भी थे, और जिन्होंने पूरा जीवन काल जन सेवा में समर्पित कर दिया। गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी की इकलौती संतान गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म, जैसे अभी मनप्रीत जी ने बताया, पटना साहिब में हुआ था। और बचपन का समय पटना साहिब में बीतने के बाद वो श्री आनंदपुर साहिब पधारे, जहां उन्होंने संस्कृत, हिंदी, ब्रजभाषा, गुरमुखी और फारसी आदि भाषाएं सीखी। तो वो एक स्कॉलर भी थे। वो सिर्फ गुरमुखी या हिंदी के ही जानकार नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी और अगर आप देखें हिस्ट्री में तो बहुत सारे उनके बारे में पर्शियन में, फारसी में लिखा गया है। वो बचपन से ही तलवार, धनुष और तीर चलाने में पारंगत हो गए थे। ये उस दौर की बात है जब उस समाज के जो समकालीन शासक थे उनके द्वारा बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इन शासकों ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। तो आप हम सब जानते हैं, सुना भी है कि पंडित कृपाराम जो एक कश्मीरी पंडित थे, वो बड़े एक मंडल के साथ, प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख होते हुए वो जुल्म से बचाव के लिए 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के पास आए। और 9 वर्ष के बाद श्री गोविंद राय ने अपने पिता को दिल्ली जाने और इन अत्याचारों को रोकने के लिए राजी किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने वर्ष 1675 में हिंदुओं के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। बाल गोविंद ने अपने हाथों में सिख समुदाय की बागडोर संभाली और अपने अनुयायियों को दया, वीरता और करुणा की भावना का संचार किया। सत्य प्रेम का मार्ग दिखाया, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए कहा, अपने अनुयायियों को निर्भय होने, कमजोर व शोषित का रक्षक बनने की शिक्षा दी। उनका बहुत ये जो सुंदर जो देही शिवावर मोहे शुभ कर्मंते कभू न टरो, ना डरो अरिसो जब जाई लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। Dear God, give me this boon to never shirk from the doing the right, to never fear when I go to fight, to ever have the confidence to win. तो महज 33 वर्ष की आयु में सन 1969 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की उन्होंने नींव का आदेश बनाकर अन्याय, स्वतंत्रता, वीरता, धार्मिकता, निर्भयता, करुणा और सहिष्णुता की लौ जो है प्रज्वलित की। उनके 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह अन्य सिखों के साथ चमकौर साहब की लड़ाई में शहादत हो गए, और उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह सरहिंद के राज्यपाल के आदेश पर जिंदा चिनवा दिए गए। इस प्रकार उन्होंने धर्म के लिए, समाज के लिए अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। इसी कारण उन्हें सर्बंसदानी या पूरे परिवार के बलिदानकर्ता के रूप में भी जाना गया है। वो प्रखर लेखक और महान कवि थे। उनके लेखन में कई भाषाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। उदाहरण उनके द्वारा लिखी हुई जाप साहिब, बचित्तर नाटक, अकाल उस्ताद, चंडी दीवार, फतेहनामा और जफरनामा शामिल है। दशमेश गुरु अक्टूबर 1708 में नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। वो सत्य, इंसाफ और हिम्मत के प्रतीक है। गुरुजी की टीचिंग आज भी प्रासंगिक है, आज के जीवन में उपयुक्त और बहुत ही बहुमूल्य है। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो देखिए उन्होंने बहुत ही सिंपल, साधारण
तरीके से जो लोगों में प्रचार किया, और वो आज भी कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है अन्याय के खिलाफ खड़े होना, लेकिन अपने अंदर दया भावना को नहीं छोड़ना। ये बहुत बड़ी बात थी। प्रेम में बहुत शक्ति है। प्रेम करने वाला ही मोक्ष प्रदान करता है। ईश्वर कोई इंसान नहीं, हर जीवित वस्तु में है। उन्होंने ईश्वर को प्रेम और मुक्ति के मार्ग के रूप में देखा। मानवता की सेवा करो, समय से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये उनका सिद्धांत था, और इसी सिद्धांत पर वो जिए। सभी एक समान, अंतर केवल मनुष्य द्वारा बनाया गया है। सर्व धर्म, जाति, पंथ, ये सब एक है। आदर्श मानव बनो, विनम्र बनो, गृहस्थ जीवन में नैतिक तरीके अपनाओ। गृहस्थी बुरी नहीं है, पर उसमें भी हमें एथिक्स होने चाहिए। पुण्य करो, कमाई का 10वां हिस्सा दान करो। देखिए कितनी कितनी अच्छी बात जो है उन्होंने मानवता को दी। अपने कथन के प्रति सचेत रहो, सतर्कता बरतो, चुगली, निंदा, कड़वा ना बोले, दूसरों का सम्मान करो, सदा सच बोलें, अपने वादे पर अटल रहें, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएं। आज समाज में ये जो सिंपल शिक्षाएं जो उन्होंने दी हैं, उसकी भावना को अगर हम अपनाएं तो बहुत सी समाज और विश्व की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उससे हम निजात पाएंगे, निजात पा सकते हैं। उनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। आइए हम अपने भीतर गुरुजी की महान शिक्षाओं की भावना को प्रज्वलित करें और सेवा और मानवता के मार्ग पर ध्यान दें, सीख ले, उनके मार्ग पर अनुसरण करें। निष्ठा, प्रेम और सेवा भावना से मानवता और खासकर विश्वविद्यालय की सेवा करें। इस सभा में सम्मिलित होने का आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, आज तक मैंने ये बात कभी बताई नहीं कि मैं मेरे जो पूर्वज हैं वो उसी जगह से हैं जहां गुरुजी गुरुजी रहे। मेरे जो मेरा पैतृक गांव है वो डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में है, नूरपुर बेदी के पास, और मेरे सारे फैमिली जो है कीरतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब, नंगल डैम उस एरिया में रहते हैं। तो मुझे वहाँ रहने का बहुत ही मौका मिला है, उस एरिया में रहने का। और गुरुजी की जो गुरुजी के जो उन्होंने सीख दी वो उस सब से जागरूक होने का। और मुझे और भी अच्छा लगा जब मुझे इस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया, और मेरा मेरा मन चाहा कि ये जो दिवस है गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश दिवस, इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से हर साल बनाएं। और आइए हम थोड़ी देर में शब्द कीर्तन का आनंद लें, और आखिर में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धन्यवाद। Thank you so very much, sir, for sharing your thoughts with us on this occasion. I now request our respected registrar, Sri Shailendra Singh Parihar, to share his thoughts with us on this auspicious occasion. Sir. थैंक्स मैडम। मेरी समझ से आदरणीय वीसी साहब ने हम लोगों को गुरु जी के बारे में सारी शिक्षाओं से अवगत कराया है, और मुझे लगता है कि हमको उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे पहले सर मैं आपको कंग्रेचुलेशंस दूंगा सर कि ये दुर्भाग्य रहा कि बताइए 20 साल हो गए विश्वविद्यालय के खुले हुए, और आपके आने के बाद ये परंपरा शुरू हुई सर। तो सच में सर इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और ऐसा जो है ज़रूर होना चाहिए। मुझे लग रहा है सर जो विश्वविद्यालय की स्थापना इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जो हुई है, बहुत यूनिक है। जो मेरे मन में भी आपके विचार आया, तो वो मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। It is indeed an honor for us to the connected with a university name after the great Sri Guru Gobind Singh Ji. The 10th Sikh Guru celebrating his Prakash Parv is an excellent gesture by the institution. And I would like to express my gratitude to our Honorable Vice Chancellor Padma Shri Professor Mahesh Verma Sahab for spreading the celebrations. जब विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ होगा तो उस समय सबसे पहले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ और गुरु गोविंद सिंह के मैं जीवन काल को जोड़ना चाहूँगा। महाभारत में एक
आती है ये बात कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो गांधारी से मिलने भगवान श्री कृष्ण गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा सर्व वंश नाश हो जाएगा। और उसके बाद कहते हैं कुछ समय बाद उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। मुझे लग रहा है, ये तो एक कहानी बताने का एक ढंग है। उन्होंने उस समय की तामसिक शक्तियों को खत्म करने के लिए पूरे परिवार के साथ जद्दोजहद किया और उसी का, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो है तो ये लोगों ने फिर सोचा ये तो कपोल कल्पित कल्पना है, लेकिन आधुनिक समाज में 300 साल पहले वही काम गुरु गोविंद सिंह साहब और उनकी फैमिली ने किया। जब समाज में, जैसा कि गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो जो दुखी हैं उनके कल्याण के लिए कोई न कोई भगवान के रूप में अवतरित होता है। और उसमें मैं मानता हूँ कि गोविंद सिंह जी प्रमुख हैं। उस समय जब तामसिक शक्तियाँ बढ़ गई थी, उपद्रव बढ़ गए थे, कॉमन मैन की जो है तो हालत खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया। जैसा कि हमारे अभी ऑनरेबल वीसी साहब ने बताया कि अपने परिवार सहित, बच्चों सहित, पिता-माता सबको एक साथ जो है तो ये ऐसी उदात्त मतलब भावना शायद कभी नहीं मिलती है इतिहास में। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस तरह की चीज़ों के लिए सर आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं और इसको हम लोग और अच्छे से तरीके से शुरू करेंगे। क्योंकि इंद्रप्रस्थ की भी जब स्थापना हुई थी, तब उस समय ये वीरान था, बीजाड़ था। उसी तरीके से हमारी जो विश्वविद्यालय 1998 में खुला, तो उस समय भी ये एरिया एकदम जो है नाले के किनारे पड़ा हुआ था। 20 साल में हम लोगों ने उसकी रौनक बदल दी। अब हम लोगों को ज़रूरत है कि हम उसको एक नए तरीके से, नए सिरे से ले जाएँ। दुर्भाग्य था कि गुरु गोविंद सिंह साहब और उनकी पूरी फैमिली को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। लेकिन अब उनकी सीख को लेते हुए, उनके बताए हुए कदमों पर चलते हुए, अगर हम सब लोग ये ठान लें कि बिना हानि के भी हम जो है काम कर सकते हैं। आधुनिक एग्ज़ाम्पल उसका सर्जिकल स्ट्राइक है। जब एक भी बंदा हमारा शहीद नहीं हुआ और हम लोग अपने पूरे ऑपरेशन को करके आ गए। तो मैं यूनिवर्सिटी में आए हुए आज के सभी विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं, अध्यापक हैं, सबसे विनम्र निवेदन करूँगा कि हम लोगों को गुरुजी से यही सीखना होगा कि एक निडरता लाएँ, निर्भीकता के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएँ और एक ऐसे ऐसे जो है तो समाज का निर्माण करें कि जिसमें जो उन्होंने कहा वो चरितार्थ हो सके कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊँ, सवा लाख से एक लड़ाऊँ, तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो नामकरण है उनके नाम पर, सारा जब यहाँ से कोई जब निकले, तो एक ऐसे ऋषि मुनि की तरह निकले कि जिसको लोग देखकर दंग रह जाएँ कि आप आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो वो आग लगाने की ज़रूरत है, अलख जगाने की ज़रूरत है, दिलों में आग लगनी चाहिए, घरों में नहीं। तो वो एक हमारे सारे मैं जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के ज़हन में इस बात को ज़रूर डालें कि नहीं, इस नाम को हमको चरितार्थ करना है। अंत में मैं मनप्रीत कौर मैडम को और ऑनरेबल वीसी साहब को बहुत-बहुत बधाई दूँगा और शुभकामनाएँ उनकी बहुत अच्छी रहें कि सारे लोग हम लोग उनके आदर्शों पर चलें। और जैसा कि उन्होंने 1699 खालसा पंथ की स्थापना की थी, जब खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने जब एक मीटिंग की तो पंच प्यारे, मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी से निकले हुए सारे लोग पंच प्यारे से कम ना हों, ज़्यादा कहलाएँ, तभी हम उनके नाम को, उनकी शिक्षाओं को, उनके संकल्प को, उनके बलिदान को आगे ले जा सकेंगे। अंत में मैं आई एम ग्रेटफुल to Professor Manpreet Kaur Kang and all the dignitaries of the Directorate of Students Welfare Association for giving me the chance to connect with the melodious Shabd Kirtan and Guru Gobind Singh Ji life. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जय हिंद. सत श्री अकाल to all of you. Thank you so very much, sir, for the very I think your wonderful thoughts which you shared with us on this occasion. We will now listen to Shabad Kirtan recited by Bhai Charanjit Singh Hira in his melodious voice, who is accompanied on the tabla by Kaka Harjio Singh. But before I request Bhai Sahab ji to begin his rendition, I request you all to please cover your heads as a mark of respect for the Guru's Bani. I would also request all the panelists to keep their videos on for a few minutes at least. Thank you so much. Anji, bye, Sabji.
वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह टू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगा आप मना रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, और इतना प्यारा वाइस चांसलर जी और जो मेरे से पहले भाई साहब जी बोल रहे थे, इतना अच्छा बोला, छू देने देने वाला उन्होंने बोला है। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समय की कमी है, 10:50 तक करना है। तो मैं 2 रचनाएं गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा गाई गई, उनके द्वारा पढ़ी गई, मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगा। पहला तो बहुत ही मशहूर शब्द है, जब माछीवाड़ों के जंगलों में उनके परिवार के साथ विछोड़ा हो गया था, और जंगल में एकांत में उन्होंने उस प्रभु के लिए गीत गाया था, शब्द गाया था, प्यार से पुकार की थी कि उस मित्र प्यारे को कहो कि तो आपके बिना मेरा जीना बहुत दुर्बल हो गया है। तेरे बिना दुख और परेशानियां और बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि उसको मैंने ओढ़ रखा हो रजाई की तरह। सूल ही सुराही बन गई है, जिससे रोज उससे पानी पीना है, और खंजर ही उससे प्याला बन गया है। और जैसे कोई कसाई किसी को या गला काट कर छोड़ देता है, वैसे बिंग कसाइयों का सहना ऐसे लोग पीछे पड़े हैं कि परेशान कर दिया है। और ये शब्द मैं गाऊंगा, इसके बाद एक दूसरी रस्म गाऊंगा, ये 2 शब्द के बाद में। मित्र प्यारे नो, प्यारे नो, मित्र प्यारे नो, हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नो, प्यारे नो, मित्र प्यारे नो। तुद बिन रोग रजाया दा ओढ़ण, तुद बिन रोग रजाया दा ओढ़ण, तुद बिन रोग रजाया दा ओढ़ण, नाग निवासा च रहना, नाग निवासा दे रहना, मित्र प्यारे नो, प्यारे नो, मित्र प्यारे नो, हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नो, प्यारे नो, मित्र प्यारे नो। सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाया दा सहना, बिंग कसाया दा सहना, मित्र प्यारे नो, प्यारे नो,
मित्र प्यारे नो। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पट केड़िया दा रहना, पट खेड़िया दा रहना। मित्र प्यारे नो, प्यारे नो, मित्र प्यारे नो। हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नो, प्यारे नो, मित्र प्यारे नो, प्यारे नो, मित्र प्यारे नो। जो अब मैं दूसरी रचना गायन करने जा रहा हूँ, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी आचार्य से परमात्मा को पूछ रहे हैं कि जब परमात्मा की अनुभूति होती है तो पता नहीं लगता कि अपना कौन है और पराया कौन है। परमात्मा के अलावा और कोई है ही नहीं। तो बहुत वो आचार्य से कलम से लिखते हैं कि निर्जन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो। अगर तुझको निरंकार कहा जाता है परमात्मा, तो इस आकार में जो जन्म लेता है वो कौन है? आकार में भी तू ही है। पूपन के पूप हो के दाता महादान हो। अगर तुम्हें दानियों का महादानी कहा जाता है, तो भिकमंगे की भिकमंगे इंसान में भी तो तेरे ही दर्शन होते हैं। प्राण के बचैया, दूत पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, किदो मानी महामान हो। तुम प्राण लेने वाला है, प्राण बचाने वाला है, बच्चे में दूध पीने वाला है, दूध देने वाला है, रोग शोक मिटाने वाला है, या रोग शोक भोगने वाला है, या रोग शोक पैदा करने वाला है। सब में ही तू है। विद्या के विचार हो कि अगमे अवतार हो। अगर ग्रंथों और शास्त्रों की विद्या में भी अगर मुझे तेरे दर्शन होते हैं, तो जो अवतार धार के जिनसे ये शास्त्र रचे जाते हैं, ग्रंथ रचे जाते हैं, उनमें कौन आता है? उनमें भी तू ही आता है। कि सिद्धता की सूरत हो कि शुद्धता की शान हो। अगर परमात्मा को शुद्धतम से शुद्धतम माना जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में शुद्धता रखी जाती है, तो सबसे ज्यादा जो सिद्धता की सूरत लेके जो घूम रहा है, शायद जो नशे करके बाहर नाली में पड़ा है, उसमें भी तो तू ही पड़ा है। जोबन के जाल हो के काल हो के काल हो। तेरे को हम आदि आदि अनंत काल से चला आ रहा परमात्मा तो अकाल कहें, या जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, जो अभी अभी जवान है, अभी पैदा हुआ है, कि मैं तेरे में उसमें दर्शन करूं। तू कौन है? तू हर एक में है। शत्रन के सूल हो कि मित्रन के प्राण हो। अगर तू मित्रों के प्राण में रहता है परमात्मा, तो शत्रुओं की सूल में भी तू ही सूल मारता है। सब कुछ तू ही है। आओ ये शब्द गायन करें। प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया, कीनो मानी महामान हो। प्राण के बचैया, प्राण के बचैया।
प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया की दो मानी महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया। निर्जर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो निर्जर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के पुपन के पूप हो के दाता महादान हो के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया की दो मानी महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया। विद्या के विचार हो के अपने अवतार हो विद्या के विचार हो के अपने अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो कि शुद्धता की शान हो कि सिद्धता की सूरत हो कि शुद्धता की शान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया की दो मानी महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया। जो बन के जाल हो के कालों के काल हो जो बन के जाल हो के काल हो के काल हो जो बन के जाल हो के काल हो के काल हो के सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया की दो मानी महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया की दो
मानी महामान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, बचैया। जो आखिरी रचना मैं गुरु गोविंद सिंह जी की गाने जा रहा हूँ, वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। वो कहते हैं कि अगर प्रेम ना हो तो प्रभु नहीं मिल सकता। चाहे जितना मर्जी बैठकर उसका व्याख्यान सुन ले, उसकी कथा सुन ले, किसी गुरु के चरणों में पूरा उम्र बिता दें, पर प्रभु अगर आपकी चाह का, आपके प्यार का सेंटर नहीं है तो प्रभु नहीं मिलता। जितना मर्जी आंखें बंद करके मूंद कर बैठे रहें, जितना मर्जी ध्यान लगाने की क्रिया करते रहें, जितना मर्जी हम तीर्थ नहाते रहें, सात समुंदर पार जा जाकर उसको ढूंढें, तीर्थों पे जाएं, ना हम उस लोक के रहते हैं, ना हम उस परलोक के रहते हैं। जितना मर्जी हम उसकी कथा सुन ले, एक बात गुरु गोविंद सिंह जी कहते हूँ, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो प्रेम में गए हैं, उस प्रभु के सच्चे प्रेम में गए हैं, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रभु अपने आप आ जाते हैं। तो आखिरी रचना ये मैं गा रहा हूँ, सभी प्रेम से सुने, श्रवण करें। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहूं कहाँ पयो जो लोचन मूंद के बैठ रहो, बख्तियान लगायो। कहाँ पयो जो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बख्तियान लगायो। बैठ रहे हो, बख्तियान लगायो। साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहूं
समुद्र न लोक गयो परलोक गवायो नाथ फिरियो लिए सात समुद्र न लोक गयो परलोक गवायो लोक गयो परलोक गवायो साच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहूं पास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो पास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो 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 साच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो पायो सो मेरी इतनी सेवा आप प्रमाण करें। आप सबको गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत बधाई हो जो आप बना रहे हैं, मना रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ही, इंस्टीट्यूट का नाम ही गुरु गोविंद सिंह जी से है। सो आप सबका धन्यवाद करता हुआ मैं आपसे फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। I have no words to thank Bhai Hiraji for his soulful Shabad Gayan, which transported us to a different world. Guru Gobind Singh Ji's words are very powerful and invoke courage and valor among the warriors in the battlefield. In the year 1704, in the Battle of Chamkaur Sahib, Guru Gobind Singh Ji had an army of 45 men, 40 and 45 around that number, whereas the Mughals were in lakhs. That is when it is
believed, he said, those lines which Registrar Sir also quoted, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं. Guruji's shabads are often used as a motivational war cry. Deh Shiva bar mohe e hai is a shabad written by Guruji in the Dasam Granth. The composition in Braj Bhasha is an inspirational call to steadfastly act with courage and righteousness despite insurmountable odds. This shabad is often played by the Indian Armed Forces. And here, let's see an old video recording of an army band playing this shabad arranged for the Regiment of Artillery Symphony Orchestra conducted by Colonel Ashok Naik. शुभ कर मनते कबू न डरो. देह शिवा पर मोहे शुभ कर मनते कबू न डरो. शुभ कर मनते कबू न डरो. न डरो और सो जब जाए लड़ो. निश्चय कर अपनी जीत करो. निश्चय कर अपनी जीत करो. शिवा पर मोहे, शिवा पर मोहे. शिवा पर मोहे शुभ कर मनते कबू न डरो. शुभ कर मनते कबू न डरो. न डरो और सो जब जाए लड़ो. निश्चय कर अपनी जीत करो. देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे. जो तो प्रेमी लंका चाहो सिंगर गली गली में आओ. सिंगर गली गली में आओ. इतबार पैर धरीजे सिर दीजे कान न कीजे. सिर दीजे कान न कीजे. सिर दीजे कान न कीजे. बोले सोनिया सत श्री अकाल. देह शिवा पर मोहे शुभ कर मनते कबू न डरो. शुभ कर मनते कबू न डरो. न डरो और सो जब जाए लड़ो. निश्चय कर अपनी जीत करो. देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे. सूरा सोते जाने जो लड़ी बीती है, जो लड़ी बीती है. पुरजा पुरजा
जकट मरे कबो न छाड़े खे कबो न छाड़े खे कबो न छाड़े खे बोले सोनिया सत श्री अकाल देह शिवा पर मोह छुप कर मन ते कब को न करो छुप कर मन ते कब को न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो देह शिवा पर मोह देह शिवा पर मोह जाने कोई ऐसे मरने जो मरे कबो न मरना होए कबो न मरना होए कबो न मरना होए बोले सोनिहार सत श्री अकाल देह शिवा पर मोह छुप कर मन ते कब को न करो छुप कर मन ते कब को न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो देह शिवा पर मोहे 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 बोले सोनिहार सत श्री अकाल With this, we come to the end of today's program. But before we conclude, even though there's no formal vote of thanks, I'd like to acknowledge the contribution of all of those who helped in putting together today's event. We're grateful to our Honorable Vice Chancellor and Registrar Sir for their help, support, and encouragement, as always. I'm grateful to the Gurdwara coordination team led by Professor Amarjeet Kaur and the other members, Dr. Gagan Sharma, Shri Ajay Goyal, and Sardar Amardeep Singh. Also grateful to the efforts of Professor Praveen Chandra and Professor Saini in helping with the WebEx link at such a short notice. Professor Ashutosh Mohan for designing the invitation and backdrop, and our student council member Vineet Thakur, who made this design live. A big thank you to our technical support team of the school who and Olivia Khas Nikaka Mehbula. And thank you everyone for joining us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.